Good morning to one and all present here. Myself Adrika. My name is Siddhant and we'll be your host for today's assembly put together by 10th A. Kindly join your hands and close your eyes for the morning prayer. Praise to thee, gracious Lord. Praise to thee, Lord. Standing in attention for the school song. We have many. To begin our day, we should always have a thoughtful word to keep our choices better throughout the day. So I would like to call Drishti for thought of the day. A guru is a person who removes suffering and gives us knowledge. I repeat, a guru is a person who removes suffering and gives us knowledge. Thank you. That was indeed a thought worth hearing for helping us to make better choices throughout the day. Hearing about the news makes us better individuals and makes us more aware. So we shall now move on to today's new bulletins. I would like to invite Joanne for the national and international news, Prakhar for the sports news and Krisha for the school news. Good morning everyone, my name is Joan Fernandez and I'm going to be sharing you all the national and international news. Today's national news is recently a girl named Jyoti, who was a PhD researcher, got electrocuted after walking to a hostel on a footpath. Today's international news is recently an earthquake took place in Japan's southmost corridor. The magnitude of the earthquake was 7.1. So far, 50 people have reported injured. Thank you. Good morning to one and all present here. Myself Prakhar Mehrotra from class 10th and today I am going to say the sports news. For Sharmila Ramkar won a historic gold medal in the Para-Athletic Commonwealth Games 2026. Second, Nikhar Zareen enters the semi-finals in the boxing of Commonwealth Games. Third, BCCI announces the Indian Test squad for the Sri Lankan series with Saraj Jain getting his first call-up for the Indian squad. Thank you. Good morning everyone, my name is Krisha Dubey and I'll be saying the school news. First, the inter-house dance competition for grade 1st to 10th will be held on 11th August. Second, a short trip to Nature's Trail will be held on 1st August, which is this Saturday for grade 9 to 12th. Thank you. What comes to your mind when you step into a dark room? Well, सबसे पहले तो confusion होता है, a bit of fear, and the urgent need to find a flashlight. Exactly. And today we are here to celebrate the ultimate flashlights of our lives. Flashlights? You mean तुम हमारी teachers की बात कर रहे हो? Yes, because today is Guru Purnima. The day of the Guru. संस्कृत में कहते हैं ना, गु मतलब अंधेरा और रू मतलब उस अंधेरे को दूर करने वाला. Spot on. Because a Guru is the one who removes the darkness of ignorance and fills it with the light of knowledge. और पता है, this day falls on the full moon day, the Purnima. It also marks the birth anniversary of sage Veda Vyasa. Correct. And on that note, we now invite Sara to enlighten us with a speech on the significance of Guru Purnima. आज हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं सारा चौहान आप सभी के समक्ष गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही ऊंचा माना गया है। गुरु केवल हमें किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। वे हमें अच्छे और बुरे में अंतर समझाते हैं और हमें एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने महाभारत और अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इस दिन हम अपने सभी गुरुजनों के प्रति अपना आदर, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान हैं और हम उन्हें नमन करते हैं। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गुरुजनों द्वारा दिए गए ज्ञान और संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएंगे और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए इस पवित्र दिवस पर हम अपने गुरुजनों को हृदय से धन्यवाद दें
और उनके प्रति अपना सम्मान और आदर व्यक्त करें। धन्यवाद। गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सावार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर की छाया से गुरुवर जीवन पथ पर साथ चले, साथ अगर छूटा भी बनकर आशीषों के हाथ चले। नमन नमन सावार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सावार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। शब्दों से वो प्रथम परिचय, अर्थों का सब लीला संसार। दिया आपने गुरुवर मेरे जीवन को सुंदर आकार। प्रभु शायद न जान सका था आज, मगर मैं समझा हूँ वो आपकी झिड़की में भी थी एक प्रेम की गंगा समझा हूँ। नमन नमन सावार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सावार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। रात होने वाली है। यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे। गुरुजी, इस घने जंगल में कहाँ रुकेंगे हम? ये घना पेड़ सुरक्षित लग रहा है, इसके नीचे ही विश्राम करते हैं। इस घने जंगल में आप भयभीत नहीं है, ना ही भूख से व्याकुल दिख रहे हैं। हे शिष्य, मैं भय और भूख से व्याकुल हूँ, परंतु अब मैंने जीवन में निराश होना छोड़ दिया है। पहले मेरी भी हालत तुम जैसी होती थी, परंतु
मेरी गुरुजी की शिक्षा के बाद मैं बदल गया हूँ। आपके आपके भी गुरुजी थे? मेरे गुरु वो एक चोर थे। चोर? चोर कैसे गुरु हो सकता है? शांत बालक शांत, बताता हूँ। तो कई सालों पहले एक रात में किसी गांव में यात्रा के समय पहुंच गया था और रहने के लिए जगह नहीं थी। तब मुझे एक चोर दिखा जो एक घर से निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या मुझे रहने एक जगह मिल सकती है? जी हाँ मानव भाव, आप मेरे घर पर रह सकते हैं, पर मैं एक चोर हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। मुझे तुम्हारे चोर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं एक सन्यासी हूँ। कुछ दिन रहने के बाद मैंने देखा, जिस दिन वह चोरी में असफल रहता और भूखा सोता, तब भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होती। वो हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में भी निराश नहीं रहता और हमेशा सकारात्मक सोचता। तो ये थे मेरे पहले गुरु। ओह, आपने अपने गुरु से चोरी करना नहीं सीखा, बल्कि उनसे खुश रहना सीखा। तो इसलिए आप आज इन विपरीत परिस्थितियों में भी भयभीत, दुखी और निराश नहीं है? गुरुजी, अब हमें डर नहीं लग रहा है। इस घने जंगल में अब हम खुशी खुशी रह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी? तुम्हारे गुरुजी कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे गुरुजी है। तुम मेरे शिष्य हो, पर मैंने तो कभी तुम्हें शिक्षा दी ही नहीं। आपको ज्ञात न हो, मगर आज मैं आपके कारण ही इतना समृद्ध पेड़ बन पाया हूँ। इतने लोगों को छांव दे पा रहा हूँ और उन्हीं लोगों का पेट भर पा रहा हूँ। यह सब आपके कारण ही है। हे शिष्य, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझसे कब और क्या सीखा? आज से कई वर्ष पूर्व, जब मैं अपने बंधु के संग एक बीज के रूप में था। तो बहुत डर लग रहा है। मैं बड़ा नहीं होना चाहता। क्या हो अगर कोई मुझे कुचल दे? क्या हो अगर कोई मुझे काट दे? पवन मुझे अपने संग ले जाए या वर्षा मुझे गला दे। मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मुझे धूप से डर लगता है। मैं इसी प्रकार खुशी और सुखी हूँ। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आज जैसा है वो वैसा कल नहीं रहेगा। तुम आज बच्चे हो, कल जवान बनोगे और एक दिन बड़े भी हो जाओगे। और हाँ, हम मरणशील हैं, तो जब मृत्यु निश्चित है तो डर किस बात का? मुझे तो गुरुजी की बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो छोटा ही रहना चाहता हूँ। गुरुजी सही कह रहे हैं। सृष्टि के जीवन चक्र के नियमों का पालन करते हुए हमारी वृद्धि जरूरी है। और एक दिन उसकी जिद और गुरु की बात न मानने के कारण एक पक्षी उसे उड़ा के ले गया अपने संग। आज मैं आपकी वजह से ही बच पाया हूँ। मैं आपका अपना गुरु मानता हूँ। मैं आपका कर्जदार और आभारी हूँ और एक दिन आपको आपकी गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा। संसार में ऐसे अनगिनत गुरु हैं, बस जरूरत है सच्चे गुरु को पहचान कर उनसे ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने की। हम सभी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।